discuss equation of a plane. Yes, a plane is a surface such that if any two distinct points are taken on it, then the line joining these points lies completely on it. यानी कि प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिस पर अगर हम कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लें तो उन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता वह लाइन है वो एंटायरली उसी सरफेस पर होनी चाहिए, राइट? नाउ अ प्लेन इज यूनिकली डिटर्मिन्ड if it passes through a given point and is perpendicular to a given vector. So, consider a plane passing through the point A with coordinates x1, y1, z1 with position vector A, and plane is perpendicular to the direction along the vector n given by ai cap plus bj cap plus ck cap. Now plane is perpendicular to this vector. That means here vector n is called as the normal vector of the plane. Right? अब प्लेन आपका इस पॉइंट A से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A. अब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A, दैट मीन्स वेक्टर OA इज वेक्टर A. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन which is ai cap plus bj cap plus ck cap. अब ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है यानी कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल द वेक्टर्स विच लाई ऑन दिस प्लेन. Now to get the equation of this plane, we take a point P with coordinates x, y, z on this plane with position vector r. Right? Now look here. A is the position vector of this point capital A with coordinates x1, y1, z1. तो इसका मतलब है जो वेक्टर A होगा इट विल बी गिवन बाय x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. इसी तरीके से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, दिस वेक्टर OP. सो वेक्टर R विल बी गिवन बाय xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. Now vector n is the normal vector to the plane. ये जो वेक्टर n है वो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है यानी कि प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर, राइट? अब ये वेक्टर n जो है इस प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर है यानी कि इस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी वेक्टर n के परपेंडिकुलर होंगे. यही मतलब है नॉर्मल वेक्टर का. सो ये जो वेक्टर AP है इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर n. अब ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है इट हैज़ टू बी ज़ीरो. सो वी हैव वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इज ज़ीरो. नाउ व्हाट इज वेक्टर AP? लुक हियर, दिस इज द पॉइंट A with position vector A. This is the point P with position vector R. So how to get vector AP? Yes, perform head minus tail. Position vector of the point P minus position vector of the point A. So, vector AP will be vector R minus vector A dot vector n is equal to 0. So, this is the vector form of the equation of the plane passing through the point whose position vector is A and normal vector n. Yes, by vector form, equation of the plane is given by vector r minus vector a dot vector n is equal to 0. Now, what was vector r? Yes, vector r was the position vector of the point P. अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x, y, z. So, vector r was xi cap प्लस yj कैप प्लस zk कैप. यही था. एंड ये जो वेक्टर A है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से प्लेन पास कर रहा है. अब प्लेन पास कर रहा था पॉइंट A से जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, z1.
तो ये जो वेक्टर ए था इट वॉज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट वेक्टर n इक्वल्स 0. Now we have to subtract these two vectors. So it will be x minus x1 i cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap dot vector n. And what was the normal vector? It was ai cap plus bj cap plus ck cap. And this dot product is equal to 0. So now we have to compute the dot product of this and this vector. So it will be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, and this dot product is equal to 0. So equation is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals 0. This is the Cartesian form of equation of the plane passing through the point जिसके coordinates हैं x1, y1, z1 और जिसके normal के direction ratios हैं a, b and c. For example, write the vector equation of the plane which passes through the point with coordinates 5, 2, minus 4 and perpendicular to the line with direction ratios 2, 3, minus 1. Yes, plane passes through this point with coordinates 5, 2, minus 1, 4. तो जिस पॉइंट से प्लेन पास करता है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं वेक्टर ए से. तो इस केस में वेक्टर ए होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. राइट नाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद drs 2, 3, minus 1. यानी कि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 2, 3 और -1. डायरेक्शन रेशोज का मतलब है कि नॉर्मल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स होंगे 2, 3, -1. तो नॉर्मल वेक्टर जिसे हम वेक्टर n से डिनोट करते हैं इट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. नाउ इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0. जहाँ पर वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से प्लेन पास कर रहा है जो कि इस केस में है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. एंड वेक्टर n इज द नॉर्मल वेक्टर जो इस केस में है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. सो पुट द वैल्यूज. आई गेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज वेक्टर r माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप plus 3j cap minus k cap equals 0. If I have to write the equation of this plane in the Cartesian form, then in Cartesian form equation of plane is given by this, right? जहाँ पर x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ से प्लेन पास करता है, राइट? अब इस केस में प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट्स 5, 2, -4. तो यहाँ पर ये होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा z1, राइट? एंड दिस a, b एंड c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर. अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है आपका ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3, -1. तो यानी कि ये है आपका A, ये B और ये C. So now we will put the values and we will obtain the equation of the plane in Cartesian form. So equation of the plane will be, yes, A is 2 into x minus x1 which is 5 plus B which is 3 into y minus y1 and y1 is 2 plus c is -1 into z minus z1 and z1 is -4, so I'll get here z plus 4 equals 0. So it is 2x minus 5 plus 3y minus 2 minus z plus 4 equals 0. You can open the bracket and simplify. So this is the Cartesian form of the equation of the plane
which passes through this point and perpendicular to this vector. Now look here. अभी हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल 0, जहाँ पर वेक्टर ए है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से प्लेन पास कर रहा है एंड वेक्टर एन इज द नॉर्मल वेक्टर. सपोज आई ओपन दिस ब्रैकेट, आई गेट वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज 0, or I can say vector r dot vector n will be equal to vector a dot vector n, right? अब हमें प्लेन के ऊपर पॉइंट पता है, तो यानी कि ये जो वेक्टर a है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ये गिवन है, और हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है, तो ये भी गिवन है. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इट विल बी अ स्केलर, तो उसे हमने डिनोट किया d से. So we have obtained vector r dot vector n equals d. This is known as the general equation of the plane in vector form. Vector r dot vector n equals d, जहाँ पर n is the normal vector. So this is the general equation of the plane in vector form. अब यहाँ पर vector r था, it was xi cap plus yj cap plus zk cap. This is vector r. Vector n था normal vector which was given by this ai cap plus bj cap plus ck cap. This equals t. अब ये डॉट प्रोडक्ट आएगा ax plus by plus cz equals t. इसको यहाँ ट्रांसपोज किया, ax plus by plus cz minus t equals 0, और इस माइनस t को मैंने नया नाम दिया कैपिटल D. So I'll get ax plus by plus cz plus d equals 0. This is the general form of equation of plane in Cartesian form. General equation. It is the general equation of the plane in Cartesian form. Right? Now look here. Look at this equation. It is a first degree equation in 3 variables x, y and z. यानी कि first degree equation in x, y and z represents a plane. और x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं a, b and c, they are the direction ratios of the normal vector of the plane. नॉर्मल वेक्टर यही था, तो वो इस फॉर्म में x, y, z के कोफिशिएंट्स बने. तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो x, y, z के कोफिशिएंट्स होते हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिवन द इक्वेशन 2x plus 3y minus 4z equals 5, right? Now it is a first degree equation in 3 variables x, y and z, so it represents a plane, right? If I ask you what are the DRs of the normal vector of this plane, direction ratios of the normal vector are given by coefficients of x, y and z. Coefficient of x is 2, coefficient of y is 3 and coefficient of z is minus 4. So direction ratios are 2, 3 and minus 4, right? Yes, now let's take few questions, simple questions. Write the equation of the plane in Cartesian form. Yes, we are given the equation of the plane in vector form. Vector r dot 2i cap minus 3j cap plus 4k cap equals 5. ये जो इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में है. मुझे इस वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स 0, राइट? अब जब मैं इस फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करूंगी तो यहाँ पर वेक्टर n का रोल कौन प्ले कर रहा है? इट्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट? तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएंगे? 2 -3 4,
राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A, ये B, ये C। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी? कार्टेशियन इक्वेशन विल बी, यस, ax यानी कि 2x, by यानी कि -3y प्लस cz यानी कि 4z प्लस d, और I can write is equal to this constant which is 5, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x - 3y प्लस 4z - 5 equals 0. और what you can do in this vector form, वेक्टर r को रिप्लेस करो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, राइट। नाउ डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स 5। तो जब आप ये डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करोगे यू विल गेट 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 5. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। यस, ये हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y एंड z, सो इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, इट इज़ द कार्टेशियन फॉर्म। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब है r डॉट वेक्टर n इक्वल्स d। वेक्टर r तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर n है नॉर्मल वेक्टर। तो मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, राइट। यस, this equation is of the form ax plus by plus cz plus d equals 0. अभी हमने किया कि कार्टेशियन फॉर्म में जो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर कौन होंगे? यस, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, y इज -1 और z का कोफिशिएंट है 2। तो नॉर्मल वेक्टर के DRs हैं 3, -1, 2। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है नॉर्मल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। सो नॉर्मल वेक्टर n विल बी गिवन बाय 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब नॉर्मल वेक्टर पता लग गया। सो वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स d। सो वेक्टर r एज इट इज डॉट वेक्टर n। वेक्टर n कौन है? ये वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स, यस, इस कांस्टेंट को शिफ्ट करो यू विल गेट -7 हियर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 9. इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए. यस, क्या आप प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं? यस, द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z, they are the direction ratios of the normal vector. So normal vector के direction ratios हैं 2, -3, 4. यानी कि ये normal vector के scalar components होंगे. So normal vector will be given by 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Right? अब मुझे इस normal vector के direction को साइंस निकालने हैं. तो हमने वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर्स चैप्टर में, जब एक वेक्टर के हमें डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो हम उस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर. इस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर. नाउ हाउ टू गेट एन कैप? इट इज वेक्टर n ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. So n cap will be 2i cap minus 3j cap plus 4k cap over square root of 2 plus square of minus 3 plus square of 4. I'll get 2i cap minus 3j cap plus 4k cap over square root of 4 plus 9 plus 16. That is square root of 29. Right? So n cap will be 2 over root 29 i cap minus 3 over root 29 j cap plus 4 over root 29 k cap. और यूनिट वेक्टर की फॉर्म होती है li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप.
तो L का रोल प्ले करेगा 2/√29, M का रोल प्ले करेगा -3/√29 और N का रोल प्ले करेगा 4/√29। और L, M और N क्या थे? डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय 2/√29, -3/√29 and 4/√29।